परब जी। हेलो, थैंक यू। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे में देख रहा हूँ 3 दिन से। Being a counselor, I observe all those things which Professor Sarangi said, your body language, the way you are interacting, the words you are using, the question you are asking, the way you are interacting during the lunch. Yesterday I saw your enthusiasm in Pandav Bhavan. आना ही नहीं चाहते थे वापस, उधर बहुत अच्छा लग रहा था. So that is very good. बहुत अच्छा लगता है जब इंटरैक्टिव रहते हैं. हमारे सामने चैलेंजिंग तब होता है जब सामने वाले बोलते नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता है. The more you open up, हमको पता चल रहा है where you are coming from and you are asking good questions. बहुत अच्छे है. मेरा उड़िया से, मतलब उड़ीसा में बहुत बार सेवा करने के लिए जाना हुआ. आई एम ए नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन. तो पूरे भारत में जाना होता है. जैसे मैंने कहा, ब्रह्मपुर के हमारे जो प्रोफेसर पीसी साहू, आप सब जानते होंगे, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन. हाँ, टीचर ऑफ मेडिसिन. उन्होंने मुझे 2-3 बार बुलाया. वो ब्रह्मपुर करके हमारा एरिया, आई डोंट नो, मुझे पहले वो बेरमपुर बोलते थे, मुझे समझ में, बेरमपुर मेरे को समझ में नहीं आया. आई लाइक द ब्रह्मपुर वर्ड. हाँ, so I call that Brahmapur. Correct me if I am wrong. Brahmapur is the correct word, ना? मुझे लगा वो ब्रिटिशर्स ने कुछ किया होगा. ब्रिटिशर्स. हाँ, sorry, our UK people are sitting outside. Britishers are known for their accent and perfection in language, है ना? तो आई वॉज इन गुजरात, तो वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे उड़िया पेशेंट थे. इन 95 आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन गुजरात. वहाँ टेक्सटाइल मार्केट है, सो बहुत सारे. सूरत, देयर यू आर. तो उधर मैंने थोड़े उड़िया शब्द सीख लिए थे. वहाँ मलेरिया इज बहुत रैम्पेंट. सो आई यूज्ड टू आस्क ओनली 4 क्वेश्चन. मुंड बोथुच्छी, सेकंड शीत होच्छे कि नहीं, ज्वर होच्छे कि नहीं, अब पेट काटुच्छे. मलेरिया इज क्लिnched. So that is my exposure to Odia language, where I used to see a lot of patients of malaria in year 95. And then I moved out to, I was here for 4 years. They are from Barampur. Achha. Okay, I was not knowing this. Thank you very much. So I'll be asking most of the questions. Is it okay if I ask you questions? थोड़ा interactive रहेगा. You came here on 24th, correct me? Yes? 24th night. So 25 से अभी तक, are you seeing any changes in yourself? Yes? क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है अपने में? सेल्फ मोटिवेशन है. फीलिंग काम. अच्छा, फीलिंग काम, पॉजिटिव. यू आर you are getting up early in the morning. Is it because of Banarsi Bhai force you 4 बजे, or it is happening naturally? It is tough for some, है ना? It is not possible for everyone, but you are doing it. It's a great thing. So you are saying something is more within you. Okay. Awakening हुआ. Yes sir. Sorry. Listening. अच्छा. Okay. See, my profession tells me कि ज़्यादा समय attention रखना बहुत tough है, क्योंकि I am a trainer. मैं 8-8 घंटे सेशन लेता हूँ. So I was with pharma industry also. My specialization is clinical research. I do clinical trials. आप जो भी cephalosporin use करते हैं ना, all generation, first generation Novapine and all, Tazobactam combination, all these are launched by me in India. All painkillers, they are launched by me. I was with industry for 20 years.
and I used to teach GCP-ICH guidelines. You heard about this? GCP-ICH. I am a specialist of GCP-ICH guidelines, how to do clinical trials. So I used to interact a lot, and now I am consultant to hospitals. I conduct this program for hospitals. So बहुत सारा मैं देखता हूँ. So I see it is very difficult to keep attention, focus. हमको लगता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन कई बार yes, touch a very important subject. एक बार टीचर ने क्लास में पूछा कि बच्चे बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है. आपने सुना है ये? हाँ, तो वही मुझे लगता है सुन रहे या नहीं सुन रहे. So I keep on asking the questions. So I'll keep it interactive. My next question is, आप यहाँ पर 29 तक है, बराबर है ना? तो यहाँ से जाने के बाद आपको क्या लगता है कि how long you will be able to maintain this positivity? हम तो बना लिया, क्या करना है? करा लिया, प्रोग्राम बना लिया. Because that is challenging, हाँ? मैं जब सेशन लेता हूँ, यूजुअली दे कॉल मी सेकेंड टाइम इन इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट, तो मैं पूछता हूँ व्हाट हैपेंड 6 महीने में कैसा रहा. बोला नहीं, जब आप आए तो बहुत अच्छा था. मैंने कहा फिर क्या, वही जिंदगी है, वही बीवी है, वही पति है, वही बच्चे हैं, वही जॉब है. सो व्हाट मोस्ट ऑफ देम आर टेलिंग कि हम वही है. तो इसके लिए आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा. सर ने कहा प्लान बनाया है. क्या प्लान बनाया सर आपने? नहीं, बैठ के बोलो सर, ये नहीं सर. 4 बजे उठना. अच्छा, दोनों मिल करके हाँ, जैसा मेडिटेशन करना. अभी दोनों आए आप? अच्छा, फिर ठीक है. वॉकिंग एक्सरसाइज थोड़ा करना है. हाँ. मैडम कौन है? आप बहुत लकी है, क्योंकि इन्होंने इतना, मैंने कहा ये इतना कैसे बोल सकते. टॉप जो सर्कल बताया था आशा दीदी ने, मेरे फर्स्ट सर्कल में वाइफ है. तो मैंने कहा इनका होना चाहिए, तभी ये बोल सकते हैं. मिलकर प्लान बना. सर ये सत्य और भ्रम का उल्टा निकालेगा सब. हाँ, आया लिख दिया उसमें. थैंक यू वेरी मच. कोई बात नहीं, हमको यही सीखना है, हमको यही सीखना है कि कोई कैसे भी बोले मुझे पॉजिटिव रहेगा. करेक्ट. इन साइकोलॉजी और काउंसलिंग वी आर टोल्ड, मैं हमेशा लोग पेशेंट को ये बोलता कि दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं. मेरा कंट्रोल किसके ऊपर है? मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं करता हूँ. ठीक है, दिस इज फंडामेंटल. हम इसके ऊपर देखने वाले हैं. दिस इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आपको इसमें क्या दिखाई देता है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? एक एक बता. टेंशन, सोच रहे हैं, और क्या दिखाई दे रहा है? पेंसिल. मॉडर्न आर्ट किसने बोला? अच्छा अच्छा, ठीक है. और सैड है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है. साइकियाट्रिस्ट कुछ बोल ही नहीं रहे यार. डॉक्टर पी के यहाँ लोनलीनेस है. ठीक है. इज दैट ओवर? इज इट ओवर? बहुत दुखी है, खोपड़ी खाली है. खोपड़ी He is thinking for new innovation. ट्रैफिक जाम है. अच्छा, कुछ होने वाला नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. इसमें क्या दिखाई दे रहा है? वो डिप्रेशन में था. इसमें क्या दिखाई दे रहा है? पार्टी चल रहा है, हैप्पीनेस है. दिख नहीं रहा है. अच्छा, डांस कर रहे हैं. और पढ़ाई नहीं करता. अच्छा, स्कूल है, पढ़ाई नहीं कर रहे, पार्टी में
डांस कर रहे हैं। ये पर्दा लगा देंगे जरा, दिखाई दे रहा है ना आपको? मैंने एक कॉलेज में पूछा स्टूडेंट से, तो एक लड़के ने कहा, लड़की ने, कि सर इस लड़की की शादी हो रही है, ये पेरेंट्स उसको मना रहे हैं, वो शादी करना नहीं चाहती है। मैंने उसको पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? बोला 23 साल। मैंने कहा फिर ठीक है। Anything else? Now you will get the biggest shock of your life. This painting is sold for, आप सबको मैं पूछ रहा था what you are observing. Have you observed? How many of you observed this figure here and this figure here? This is $1 million. You are correct. Very correct. How do you know, sir? It is the cost of these paintings. This painting is sold for 350 crore and this painting 450 crores rupees. These are one of the highest sold paintings of the world. क्या है इसमें? मैं होता तो 100 रुपया भी नहीं देता। You can check it on Google. Why? ये बहुत डीप है, मैं टाइम के हिसाब से इसमें नहीं जा रहा हूँ। But one person had to pay 450 crore for this painting. इसके पीछे कुछ तो है राज। What does this picture mean? This is the cost in million pounds. This is the cost of this painting. Million pounds. So that's how it is like that. वैन डो, अगर आपने नाम सुना है, आप गूगल में इसको डालेंगे ना, आपको मिलेगा ये। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये सब ऑर्डिनरी है, बट कुछ व्यक्ति के लिए दिस इज वर्थ crores of rupees. ठीक है ना? What does this message to us? हमारे लिए मैसेज क्या है इसमें? Exactly. What is the meaning of life? Life has no meaning. We give meaning to the life by the thoughts we create about it. Are you there? आपका लाइफ उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना आप उसकी वैल्यू क्रिएट करेंगे, and it is based on your thought. Are you there? You are getting what I'm saying? तो ये आपके हाथ में है। ये साइकिल है लाइफ का, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रे। हम सब इस साइकिल में से जाते हैं। जैसे किसी ने कहा ना, बिटवीन बी एंड डी विच लेटर कम्स? बी एंड डी, सी। करेक्ट? सो बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर इज अ सी, दैट इज अ चॉइस। कैसे जीना है? जैसे आप सब इधर आए हुए हो, अभी आपके हाथ में है कि इसके बाद क्या है ना? दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इट इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या सोचते हो। मुझे बहुत सारे बीइंग साइंस, अच्छा, विच टू नंबर वन, सम पीपल, आई मे बी रॉन्ग, सी पूरा झगड़ा जो इस समय है ना, इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। हर एक अपने दिमाग के हिसाब से अर्थ निकालता है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा अर्थ क्या है, पर मेरा अर्थ आपको अच्छा लगेगा जरूरी नहीं ना। सो यू क्रिएट योर मीनिंग ऑफ लाइफ. This is what we learn in facilitation. We respect everyone's opinion. हर एक अपनी जगह पे बराबर होता है। ये आपको समझने में, yes, this is what I am saying. Interpretation will be different, and it has to be different according to me. तभी तो वैरायटी रहेगी ना। जीवन में सभी चाहिए। What is possible? अरे ये पिक्चर बराबर नहीं आ रहा है। Can you see something? ग्लास दिखाई दे रहा है? Actually, I don't know why this glass is not visible. इसमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन है। ये ग्लास है पूरा। हाँ, दो ग्लास है। दिस इज क्लासिकल पीपल गिव एग्जाम्पल, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? ग्लास हाफ फुल है, हाफ एम्प्टी है?
but some people are saying पूरा full है. Both are correct. But meaning is different. मीनिंग इज डिफरेंट. ठीक है. आपका लाइफ क्या है? हाफ फुल हाफ एम्प्टी. हाफ फुल है. मेरे पास Positivity more. अच्छा सब फुल है. हाउ सर? Because I am content with what I am doing. एग्जैक्टली. अच्छा है. क्या बेटा? मेरे पास एक पेरेंट्स ने एक लड़के को भेजा. ही वाज मेंटली डिस्टर्ब. निगेटिव बहुत सोच रहा था. तो मैंने कहा इसको क्या समझो. मेरे पास पानी का बॉटल था, उसमें आधा पानी था. मैंने कहा ये बॉटल खाली है या भरा हुआ? बोला पूरा भरा हुआ. मुझे लगा है पागल पागल की तरह. पूरा कहाँ भरा हुआ है? मैंने सेड आधा पानी से आधा हवा से भरा हुआ है. Which I could not see. माना मैं नहीं सोच पा रहा था. मैं भी तो यही बोलने वाला था आधा भरा. उसने कहा आधा पानी से आधा हवा से भरा हुआ है. तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि लोग वो देख लेते जो हम नहीं देख पाते. अभी रहे समझ रहे? हम सबका जीवन है ना कई सारी बातों से भरा हुआ है. ठीक है ना. अब वो बातें ही है जो उछलते रहती है. आप सबकी चेहरे जब हम किसी को देखते हैं ना, हमारा चेहरा बताता है कि हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है. अच्छा है ना. हमारा चेहरा बताता है कि नहीं बताता है? जो अंदर भरा हुआ है वो क्या बोलते हैं? जो गोडाउन में होगा वो शोरूम में आएगा ना. जो दिल में है वो चेहरे पे आएगा कि नहीं आएगा? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. ऐसे फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा हंसते रहना चाहिए. नो, गंभीरता इज अ गुड डिवाइन क्वालिटी, लेकिन गंभीरता में प्रसन्नता चाहिए. मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं. आई वॉज इन वन हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल मुंबई के ENT सर्जन. उन्होंने कहा सर पॉजिटिव थिंकिंग कुछ नहीं, निगेटिव थिंकिंग बहुत पावरफुल एंड इट इज यूजफुल. आई वाज सर शॉक. मैंने कहा ये कैसे है? बोला सर मैं ऑपरेशन करने के पहले एकदम निगेटिव सोच के जाता. मैंने कहा क्या सोचते हो? बोला मैं सोचता हूँ बहुत ब्लीडिंग होगा, ऑपरेशन फेल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. मैंने कहा ऐसा कोई सोचता नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचते? बोले ये बहुत पावरफुल है, मुझे बहुत मदद होती है. तो मुझे पहला ऐसा व्यक्ति मिला जो ये कह रहा है कि मैं निगेटिव. मैंने कहा उससे फायदा क्या होता है? बोला सर सबसे बड़ा फायदा मैं जाने के पहले सोचता हूँ सब रॉन्ग होने वाला है, नर्स गलत इंजेक्शन दे देगी, मैं भी गलत नर्व या ब्लड वेसल को कट करने वाला हूँ, कॉम्प्लिकेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, सीरियस हो जाएगा पेशेंट. मैंने कहा फिर क्या? मैं बहुत अटेंशन से काम करता हूँ कि ये सब नहीं हो और सब अच्छा हो जाता है. तो मैं बहुत खुश होता हूँ. देखो मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया. So I enjoy it. ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं. तो मैंने सोचा ये निगेटिव थिंकिंग यूजफुल है क्या? तो आई वाज सर्चिंग और मुझे ये बुक ही मिला, द पॉजिटिव पावर ऑफ निगेटिव थिंकिंग. अभी यस, तो मैं ये आपके सामने ये सब सर्जन सोचते हैं ना. अच्छा, आई ओपन सर्टन फाइल्स इन यू. आप सब सोचने लगे हैं. मैं आपको यही कह रहा हूं कि कई लोग ना केवल पॉजिटिव थिंकिंग ही करते रहते हैं. वी नीड टू हैव विच थिंकिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव. I am not pushing you to. I am just asking question. या आप अपने बारे में बताओ ना कि आप क्या सोचते हैं. सी आई डोंट फोर्स माई ओपिनियन ऑन अदर्स, आई एम लिविंग इट टू यू. हाँ, दिस इज व्हाट आई से. वेयर आर यू? यू हैव टू सी योरसेल्फ. इट विल नेवर हैपन, आई कैन डू इट, नो वे. And it will happen, I can do it. Yes, this is positive, it is negative. There is something known as realistic. So where do you see yourself most of the time? आप अपने आप को चेक करना कि दिन भर में आपकी स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पे होती है ना, इन डिफरेंट सिचुएशन.
ऐसा हो सकता है कि आप मॉर्निंग में बहुत पॉजिटिव है, शाम को डिफरेंट हो सकते हैं, यस और नो? सेम पर्सन सुबह बहुत खुश है, शाम को थोड़ा डिफरेंट है, दोपहर को डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह ड्यूटी पर आते ही तड़तड़ कर रहा है, लगा गुस्सा कर रहा है, डिस्टर्ब है, तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? सुबह अच्छा नहीं गया, रात को ठीक से नहीं सोया, घर में झगड़ा करके आया है, घर का झगड़ा इधर निकाल रहा है, ठीक है। दिन भर आपने अच्छा किया, दिन भर आप अच्छे हैं, घर पे जाने के बाद कोई तड़तड़ कर रहा है तो क्या समझ लेगा? ऑफिस का गुस्सा घर पे निकाल रहे हैं, उसको माउंट आबू आना चाहिए। सो यू एग्री दैट वी कैरी अवर इमोशनल बैगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यस और नो? वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? She has used one very important word, sir, हो जाता है, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है। This is where my role comes in. I am a person who works with something known as neuroplasticity. How many of you heard this word? Neuroplasticity. Have you heard? What is the meaning of neuroplasticity? Rewiring of the brain. Rewiring of the brain. You can change your way of thinking. और मैं इसमें काम करता, क्योंकि मेरे पास एडिक्ट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम पीना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कई लोग हैं ना गुस्सा करने वाले, वो गुस्सा करना नहीं चाहता, वैसे मैं बहुत शांत हूँ। मैंने कहा फिर कैसे गुस्सा आता है? जब कोई झूठ बोलता है तब मेरे से रहा नहीं चाहता। सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन, और ये सब ऑटोमेटिक होता है, तो ऑटोमेटिक को हम कॉन्शियसली लाएंगे। So first slide, important, positive thinking is not about expecting the best to happen every time. No, life is not designed that way. Yes? It is not expecting the best, but whatever happens is best for that moment. This is very profound statement. हमको उस समय समझ में नहीं आता है कि वो क्यों हो रहा है, थोड़ी समय बाद हमको उसका फायदा पता चलता है। हमारे एक साइकोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर, ही इज वेरी फेमस, ही हैज नॉट कम फॉर ट्रेनिंग, वाज सपोज्ड टू कम, डॉक्टर गिरीश पटेल। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट हिम। तो वो जब कॉलेज में थे तब से उनके सिर के ऊपर बाल नहीं है, ही वाज बॉल्ड, यंग लड़का बॉल्ड, सब लोग मजाक उड़ाते थे। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बाल ही नहीं है मेरे, तो बहुत है ना, ही वाज अ टारगेट ऑफ बुलिंग। बट जैसे उसने एमडी किया और प्रैक्टिस करने आया तो उनके सर ने बोला तुमको सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बॉम्बे में एक ही बिल्डिंग में 3-4 डॉक्टर होते हैं। पर इसने क्या देखा कि 6 महीने में इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे होने लगे, तो उसको लगा कि शायद मैं अच्छा डॉक्टर हूं। लेकिन पेशेंट ने उसका राज बताया। एक पेशेंट ने उनको कहा सर इस बिल्डिंग में सबसे सीनियर आप ही लगते हैं। उसको बाद में उसका फायदा पता चला। कई बार हमको उस मोमेंट में पता नहीं चलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, कीपिंग पेशेंट एंड होपफुल। क्योंकि जिस समय होप, you know, I should not talk on hope, but you are very senior. Hope is very important. You agree? But मैंने क्या देखा है, those who are negative thinker, they are impatient and hope छोड़ देते हैं। I work with depression patient. डिप्रेशन का ट्रायड सर को पता है, आप सबको पता है ना, हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस। दिस इज द ट्रायड, क्लासिकल ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस। तो ये स्टेट आ सकती है। मैं ये कह रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? लव। सर से लव निकल रहा है। क्या जवाब दिया सुना आपने? प्यार करने की वजह से दिमाग का ढक्कन उड़ गया है। सर बोल रहे वहां से सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा प्यार का नतीजा।
सब अनुभव के बोल आ रहे हैं। यूजुअली इधर क्या होता है, हार्ट और हेड, हेड और हार्ट, दिस इज हेड मीन्स ब्रेन इज देयर, है ना, ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रेन के ऊपर हार्ट रखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, थिंकिंग विद हिज हार्ट। अच्छा, दिल से सोच रहा है, एक्टोपिक गायनेकोलॉजिस्ट को अच्छा, he is working according to his emotions, so emotions are dominating the logic, so that's good, very good. I don't know, I just put that picture. मुझे यही जवाब कॉलेज से मिलता है, लड़के बोलते सर प्यार करने की वजह से खोपड़ी उड़ गई है। So my question is, what should we use, head or heart? Head. Both are important, balance is important. पर जब आप कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था फिर भी गुस्सा आ गया, तो जैसे इन्होंने कहा ना आ गया, मैं चाह, इट मीन्स कौन टेक ओवर कर रहा है, कौन टेक ओवर कर रहा है? यस, आर वी रैशनल, दैट इज प्रिसाइजली माई क्वेश्चंस, आर वी रैशनल, ह्यूमन बीइंग इज रैशनल और इरैशनल, आर यू रैशनल? पता नहीं, यू आर रैशनल, यहाँ आने के बाद लग रहा है कि हाँ, see it is your journey, you have to take a call. In English they say human being is rational but animal, it's a rational animal, have you heard this? So, and then next statement I saw is animals are disappearing from jungle and reappearing in the cities. One scientist came here and he said the biggest, the most dangerous animal on this planet is not tiger or lion. It is why he made that statement? It is not by his say. मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला कि टाइगर एक को मारेगा, लायन भी एक को मारेगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग हैज द कैपेसिटी टू किल मिलियंस थ्रू द वेपन्स, है ना? और आजकल बहुत सारे वेपन आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं सी आई एम हिंटिंग एट समथिंग एल्स। ये मेरा नेक्स्ट पिक्चर है। आई डोंट नो यू आर फ्रॉम नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें सब मिक्स है। आप इसमें से किसको किसको जानते हो मुझे नहीं पता। हु इज दिस जेंटलमैन? गुरुदत्त। किसने बोला? करेक्ट आंसर, गुरुदत्त। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है ना। इनके एक मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जाने कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी थी कांटों का हार मिला। दैट इज अ प्यासा ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का मूवी है। ओके, दिस मार्लिन मोनरो, करेक्ट। ये विदेश की मधुबाला है। ये कौन है? एंजेलिना में। अच्छा ठीक है, ये कौन है? दिव्या भारती। ठीक है, ये तो आप नहीं जानते होंगे क्योंकि ये कौन है? नेपाल। करेक्ट मैडम, यू आर करेक्ट। हम ना मेडिकल में ऐसे ही एग्जाम देते थे। एग्जामिनर बोलते सर ये यूज्ड टू टेक चांसेस। एक बार मैंने सर को नाटक किया, मैंने कहा सर जबान पे उत्तर है, बाहर नहीं आ रहा, जबान पे है। तो हमारे एग्जामिनर ने कहा सचिन मार्क्स भी ना पेन में है, बाहर नहीं आ रहा है। शी इज करेक्ट, ही वॉज युवराज ऑफ नेपाल, युवराज ऑफ नेपाल, करेक्ट। अच्छा, इनके बारे में तो शी इज जिया खान, हैव यू हर्ड? जिया खान, जिया खान who worked with Amitabh Bachchan and all the Zia stars. ये आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। He was a spiritual guru who had millions of followers from MP, Madhya Pradesh. He was earlier something else, then he became a guru. His name is Bhaiyuji Maharaj. He was from Maharashtra. He was ATS chief, anti-terrorist squad chief of Maharashtra police, Himanshu Roy. He was director again who gave the Amar Akbar anthem. Exactly.
तालियां बजाओ इस जवाब के लिए, क्योंकि ये जवाब बहुत लोग देते नहीं है. इट इज अ टफ क्वेश्चन, पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन है वो. पास हो गए. ही इज मनमोहन देसाई, अमर अकबर एंथोनी मूवी के डायरेक्टर. अभी मैडम ने भी गेस कर लिया है ना, आपका आईक्यू थोड़ा फास्ट है, आप लोग बहुत फास्ट पिकअप कर, बिकॉज वी आर सीनियर पीपल है ना, आप लोग जज कर लेते बॉस. तो नहीं, इस पिक्चर में क्या है उसका जवाब वो मैडम ने दिया इन द बिगिनिंग. इन सब में कॉमन चीज क्या है पता है? हाँ, ये ऑल सेलिब्रिटीज है. सेलिब्रिटीज माना 3 चीज, रिच, फेमस एंड ब्यूटीफुल. बट इन सब में कॉमन, इन सब ने सुसाइड किया है, और दे हैव डाइड मिस्टीरियस डेथ. तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जिसके लिए हम मेहनत करते सब इनके पास था. दे वर ब्यूटीफुल, दे हैड मनी एंड दे वर फेमस, नाम निशान. बट स्टिल दे टुक अ डिसीजन कि जीने से मरना अच्छा है. आर यू देयर? जिया खान फॉरेन से सीखी हुई थी. ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. ही शॉट, ही वॉज अ स्पिरिचुअल हीरो. ही शॉट हिमसेल्फ. तो हम समझ सकते हैं नॉन स्पिरिचुअल पर्सन किलिंग, पुलिस पर्सन. ही वॉज अ राइटर, डेल कार्नेजी. आप अगर अमेरिका गए, कार्नेजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना, एंड ही हैज रिटन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. सो दे वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. बट एज अ डॉक्टर वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि जब emotions take over the reasoning, we take this step. Yes or no? Yes. मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट है मेरे. दे कम टू मी फॉर काउंसलिंग. सुसाइडल थॉट्स किसी को भी आ सकते हैं, ठीक है ना, और इसका कोई भरोसा नहीं. बीमारी किसी को भी आ सकते है. इट्स अ मिथ कि डॉक्टर बीमार नहीं होने चाहिए. इनफैक्ट आई एम सेइंग द बर्नआउट इज प्रिटी कॉमन इन इंडिया. My classmate, he was MD anesthesia. टाटा हॉस्पिटल सुना है आपने, मुंबई में? He was working as anesthetist. He had a love marriage, 1 kid. At the age of 36, इंजेक्शन लेके सो गया. He killed himself. So मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस किसी को भी आ सकता है. नेगेटिव थॉट्स कैन टेक ओवर योर रीजनिंग. इस पिक्चर में क्या दिखा है? Yes, it's a iceberg phenomena we call it. है ना. इसमें क्या होता है? टिप इज विजिबल बट दिस 90% बिलो वाटर इज नॉट विजिबल. तो आप सोचते हैं कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर देते हैं. क्यों? क्योंकि 90% टेक्स ओवर. जब तक आप ये 90% को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. समझ रहे हैं आप? अभी मेडिटेशन या ऑल दिस व्हाट एवर सीबीटी थेरेपी वी आर गिविंग हियर. सीबीटी, हैव यू हर्ड द वर्ड सीबीटी? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. दैट इज द कॉमनेस्ट थेरेपी वी यूज फॉर काउंसलिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी में एक मुरली क्लास होता है, डेली मुरली क्लास. These are the versions of शिव बाबा. शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा, तो दैट इज सीबीटी. वो आपके कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे बदलेगा बाय थॉट्स. तो जब तक आप मेडिटेशन में ये नहीं बदल रहे हैं ना, तब तक आपके हैबिट्स नहीं बदल सकते. आप यहां बोल रहे हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप यहां से जाओगे बाहर, वो ट्रेन में या फ्लाइट में कुछ हुआ, इतना दिन तक मैं शांत था, तुम्हारी वजह से मेरी शांति गई. अभी ये क्यों हो रहा है? ये ऑटोमेटिक पॉपअप होगा, बिकॉज दिस इज योर सबकॉन्शियस. दिस इज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हमको यहां पे ध्यान देना चाहिए. इसको हम बोलते हैं लिविंग कॉन्शियसली. जितना आप कॉन्शियस हो जाएंगे, एवरी मोमेंट अवेयर हो जाएंगे, तब आप अपने अंदर जाओगे. ओह, दिस इज हाउ आई रिएक्ट, ओह दिस इज माई पैटर्न, दिस इज हाउ आई टॉक, दिस इज द वर्ड विच आई यूज मोस्ट ऑफन. तो आपको पता चलेगा कि आप अपने बारे में जागरूक होने लगेंगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू विथ मी? वी कॉल दिस सेल्फ अवेयरनेस. जितना आप खुद के बारे में जागरूक होते जाएंगे ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाएगा. हम एक एनालिसिस करते हैं मैनेजमेंट में, स्वॉट एनालिसिस. व्हाट इज स्वॉट? एंड थ्रेट. करेक्ट. ये बहुत अच्छा है. पहला ही नेगेटिव. अवेयरनेस.
सो फर्स्ट इज अवेयरनेस, बिकम अवेयर। जैसे आप अभी यहां बैठे हो, प्लीज डोंट फील बैड। शुड आई गिव माई ऑब्जर्वेशन? यहां पे 3 लोग बैठे हैं, जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं। अभी डोंट वॉच, इधर उधर मत देखो, सुन रहे लेक्चर। पर अभी लेक्चर सुनते समय ये क्यों हो रहा है? हाँ, पर ये अंडर करेंट्स है ना? मेरे अंदर कुछ चल रहा है, सम एनर्जी इज देयर, इज नॉट नेगेटिव, इट्स एन एनर्जी विच इज मेकिंग मी मूव। तो धीरे धीरे ना आप अवेयर होते जाएंगे कि मैं ये कर रहा हूं। अब ये अनकॉन्शियस बिहेवियर है, आपको इसको लाइट में लाना है। जैसे आप अपने इस अनकॉन्शियस बिहेवियर मेंटल पैटर्न्स तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। अवेयरनेस के बाद आपको आएगा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ, है ना? नो डाई सेल्फ कहते हैं ना। विद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कम्स सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, यस मैं ऐसा हूं, है ना? With self acceptance, then most important thing which comes is self respect, and this self respect leads to transformation. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? You will go through these steps. ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप सेल्फ रेस्पेक्ट में जाते हो। दीदी ने जो कहा 10 पॉइंट लिखो अपने बारे में अच्छे। अगर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, you will write 20 points. 15 points because you know your good qualities. But most of us it is very difficult to accept. मैं तो बुरा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ. It takes time to accept that you are child of God and you are the most beautiful creation. Yes or no? You agree? जब अभी ये ईगो नहीं है, दिस इज नॉट ईगो ट्रिप। सम पीपल थिंक इट्स अ ईगो ट्रिप, दे आर करेक्ट इन अ वे, क्योंकि कई बार ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट सेम ही लगता है। इसको हिंदी में कहते हैं मियां मिट्ठू बनना। मियां मिट्ठू आपने शब्द सुना है? मियां मिट्ठू वो तोता होता है ना, वो अपने को बोलता रहता है। तो अपनी बढ़ाई करना ये नहीं कह रहा हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट इज एक्सेप्टिंग योर लिमिटेशंस आल्सो। तो हम इसमें आगे जाएंगे। There is a conflict between head and heart because I keep most of the time मैं scientists से मिलता हूँ, those who are thinkers। तो अभी देखो, this is a dialogue between heart and head। तो हार्ट गलती करता है। मेरे पास केसेस है, आपने सुना होगा people fall in love, have you heard? आप में से किसी का लव मैरिज हुआ है? मोस्ट ऑफ द डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर्स कॉलेज में आते समय अकेले होते हैं, बाहर जाते समय शादी करके आते हैं। नथिंग रॉन्ग। मेरे पास एक केस है, हस्बैंड वाइफ झगड़ा हो गया, लव मैरिज। मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, यू हैड फॉलन इन लव? तो बोलते हाँ सर, वी हैड फॉलन बिकॉज वी वर ब्लाइंड, दैट्स व्हाई वी हैड फॉलन। मुझे उस समय पता चला व्हाई पीपल फॉल इन लव, बिकॉज लव इज ब्लाइंड। मैंने कहा आपका केमिस्ट्री अच्छा था, दोनों का केमिस्ट्री अच्छा था, क्योंकि कॉलेज से साथ में थे। बोला हाँ सर केमिस्ट्री था, थोड़े केमिकल इधर निकले थोड़े उधर निकले। इट वॉज नॉट लव, इट वॉज अट्रैक्शन। मैंने कहा फिर भी आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, ये सब क्यों? तो वो सिचुएशन है, ब्रेन को सफरिंग होता है। ब्रेन कहता है इफ यू लव अगेन आई विल किल यू, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे सफर करना पड़ता है। So you have to talk to your heart. Dear heart, your job is to pump the blood. Don't get involved in everything. This is how to stay away from the things which disturbs you. क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस, है ना? हम हर बात में, कई लोग ना इमोशनल हो जाते हैं, हर बात में इमोशंस को लाते हैं। तो there is nothing wrong with emotions. Emotions are good. They differentiate us from machines. We are not machines. लेकिन वो emotions क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? Positive and under control. ठीक है ना? Otherwise, I have many cases of divorces or relationship issues. So, सुनामी आ जाती है।
This is a famous quote of Aristotle, getting angry in a right way. Anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose and in the right way, this is not easy. This talks about how you express your dissatisfaction in a controlled way. नहीं तो बीमारी पैदा होगी. अब ये कैसे होगा? This is what I see. Either people suppress their emotions or they are aggressive. Which is good? Both are bad. क्योंकि लिखा हुआ है, निकल देना चाहिए. Either you are aggressive, you destroy the other person, or you destroy your own self. Correct? What is the best way? इसका ट्रेनिंग दिया जाता है. I gave this training of 6 hours. Assertiveness. You have heard this word? Assertiveness. This is very important. See, we are administrators. अभी मेरे नीचे कोई काम नहीं कर रहा है, मैं चुप कैसे बैठूं? I am responsible person. You are also responsible person. आप गुस्सा करेंगे तो ये तो हमेशा गुस्सा करते हैं. You have to be assertive. तो आप वो कैसे देंगे? Assertiveness means what? What is assertiveness? Appraisal. Not in a language we destroy. ठीक है, but what is that way? ये कला है, and this is an art which you have to learn. तो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि अगर आपको किसी को कुछ listening नहीं है, हाँ, you have to talk. You have to say, but there is a way of saying. They say it is not what you say, but the way you say that makes the difference. जैसे कल सर ने कहा ना, टच इज इम्पोर्टेंट, पर टच का भी डिग्री होता है. आप कहाँ पे टच कर रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कौन से टाइम पर, कौन से व्यक्ति के साथ. You have to be careful. There is a perfection in that touch. Similarly, even if you are right, there is a way of saying it, or way of doing the things. तो वो कैसे करते हैं ब्रह्मा कुमारी? इसमें पहले हम उसकी विशेषता बताएंगे कि सर आप बहुत अच्छे हो, आपने ये काम अच्छा किया है, बट ये जो आपने किया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा. इसके बजाय आप ये करते तो मुझे अच्छा लगता. व्हाट डू यू थिंक? आप समझ रहे हैं? अब ये एग्रेसिव पर्सन कैसे बोलेगा? तेरे को अक्कल है कि नहीं? अक्कल है कि नहीं? मेरे को समझ में आता है. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज इंसल्टिंग द अदर. उसका सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म कर रहा है. आ रही है? और सप्रेशन वाला की तो बात ही नहीं, चुपचाप बैठा, ठीक है, अंदर ही अंदर तकलीफ हो रहा है. हाउ असर्टिव विल से यस, सी यू आर अ गुड पर्सन, आपने ये काम अच्छा किया है. उसको चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, उसकी विशेषता सुनाओ कि तुमने पास्ट में ये अच्छा किया है, लेकिन ये जो आपने किया ना, और ये नहीं मत कहो कि तुम खराब हो, नहीं, तुमने ये जो किया ना, आइडेंटिफाई दैट एक्ट. एक्ट को कहो, व्यक्ति को मत कहो. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्ट एंड द पर्सन. व्यक्ति अच्छा है, उस समय जो किया वो अच्छा नहीं है. आर यू देयर? एक्ट को निकालो और बोलो कि ये तुमने किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा. सेल्फ स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट, मेरे को अच्छा नहीं लगा. अभी आप सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, इसके बजाय आप ये करते तो मुझे अच्छा लगता. व्हाट डू यू थिंक? आप समझ रहे हैं? आप रिलेशन को तोड़ नहीं रहे हैं, आप अपना रेस्पेक्ट भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट भी नहीं छोड़ रहे, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग थिंग्स डन. यस, ये कर सकते हैं हम. दो चीजों की वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं. एक, टोन ऑफ द वॉइस. जब भी यू लूज कंट्रोल, आपका टोन बढ़ जाता है. यस. और दूसरा, यू डोंट रेस्पेक्ट द पर्सन. मैं एंगर मैनेजमेंट में 8 घंटे का वर्कशॉप लेता हूं. एक हिंदी विद्यालय में एक लड़के ने कहा, सर जब तक मैं गाली नहीं देता हूं ना, शांति नहीं मिलती. सो मैंने सुना ध्यान से. सॉरी, कहना है आप बहुत अच्छे हैं, आप ये सब हंसते हुए बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है. मैंने उस लड़के को पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय गाली? क्योंकि हम किसी भी वर्ड को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते. वी हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाला कहां से आ रहा है. वी डोंट जज पीपल, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने उसको पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय गाली? उसने कहा, सर
हाथ और पैर से हिंसा करने के बजाय मौखिक रूप से की गई हिंसा। अरे सुनो, he gave me the definition of गाली। He said हाथ और पैर से हिंसा करने के बजाय मौखिक रूप से की गई हिंसा, जिसके उच्चारण के पश्चात आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। मैंने कहा गुरुजी आपके चरण किधर है? पहला व्यक्ति मैंने देखा जो गाली की इतनी सिस्टमैटिक डेफिनेशन दे रहा है। पर मैंने उसको पूछा, ठीक है आपने गाली दिया, आपको अच्छा लगा, उसके बाद सामने वाले की क्या सिचुएशन है? क्या वो भूल पाएगा? क्या वो भूल पाएगा? नहीं। महाभारत का पूरा इसेंस क्या है? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या बोला? हाँ, अंधे की औलाद। सी आप, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररी अपसेट डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। उस समय आपका मूड अच्छा नहीं है, आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपका रिलेशन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। यस और नो? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट इज वेरी इजी टू से देन टू डू इट, है ना? ये इतना इजी नहीं है, इसको टाइम लगता है, हम जाएंगे उसमें। अभी मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाऊंगा बेस्ड ऑन दिस टाओइस्ट सेइंग, जिसके बाद मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। आर यू रेडी? अभी नहीं आएगा, डरो मत। इट्स अ प्रेडिक्टिव टेस्ट, क्योंकि आप बहुत सुन रहे हैं ना। लेट्स डू समथिंग, एक्टिविटी करेंगे, करेंगे, पर सिंसियरली करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं वैसे करना पड़ेगा। शांति में चलिए, करेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा तकलीफ होगा। आर यू रेडी? अच्छा ठीक है, सीधा बैठेंगे, सभी सीधा बैठो। वेरी गुड, मतलब कोई भी सीधा नहीं बैठेगा, ठीक है। अच्छा, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखो, दोनों हाथों को ऐसे रखो। अरे मेरे एक हाथ में माइक है, कॉपी करने की आदत अभी तक नहीं है। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे, ठीक है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ठीक है। रेज योर हैंड्स, ऐसे ऊपर लेके जाओ, बहुत बढ़िया। अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, और अपना पूरा गुस्सा इस मुट्ठी के अंदर आने दो। पूरा गुस्सा मुट्ठी में आने दो। बचपन से लेके अब तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अन्याय हुआ है, वो सब गुस्सा इस मुट्ठी में आने दो। ऑल योर नेगेटिव इमोशंस, लेट इट कम। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आंखें बंद, आंखें नहीं खोल रहे, सिंसियरली। आप जैसे आप टाइट कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग एट योर हार्ट? अगर मुट्ठी टाइट नहीं हो रही है, आंखों के सामने उसका चेहरा लाओ जिसने आपको बहुत परेशान किया है, टाइट हो जाएगी। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे इस मुट्ठी को लूज करते जाओ, लूज करते जाओ, लूज करते जाओ। और जैसे आप मुट्ठी को खोल रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? ओपन करो एंड फील व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड एंड बॉडी। वेरी गुड। धीरे धीरे ओपन करेंगे पूरी तरह से। अभी आंखें खोलेंगे और ऐसे करेंगे, ऊपर जाने दो शिव बाबा के पास, हाथ नीचे। अच्छा कर रहे थे आप लोग, वेरी गुड। आई वॉज वॉचिंग यू। कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे, वेरी सिंसियर भी। और मैं देखता हूं इसमें पसीना भी आ जाता है कुछ लोग। दैट्स अ गुड, दैट पर्सन इज डूइंग सिंसियरली। माय क्वेश्चन इज, आप में से किसको मुट्ठी बंद करते समय अच्छा लग रहा था? इज फीलिंग गुड? और तो किसको अच्छा लग रहा था मुट्ठी बंद करते समय? नहीं? एक? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग गुड व्हेन यू टाइटन योर फिस्ट? अच्छा, हल्का कब लगा? व्हेन यू फेल गुड? जब आपने खोल दिया। एग्जैक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Whatever is flowing and flexible tends to grow. Whatever is rigid and blocked will wither and die. अब ये मुट्ठी क्या है मैं बताता हूं, इसको अच्छी तरह समझना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी क्या है एंड लौकिक लाइफ क्या है। लौकिक में हम क्या करते हैं? हर बात को ऐसे पकड़ के रखते हैं। दिस इज रिजिडिटी, दिस इज ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी।
and spirituality is letting go. Spirituality is art of living. Have you heard this word? तो living का spelling क्या है? LIVING नहीं, art of living. छोड़ दो. That is the secret of life. That is the secret. आपको ये सीखना है, छोड़ दो, क्योंकि पकड़ के आपको तकलीफ होना है। मैं जब वर्कशॉप लेता हूं, मुझे लोग कहते सर इसको देखा ना, देखते ही ऐसे लगता है कि अभी किसी को देखने के बाद मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका फाइल यहाँ पे किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया है ना, वो कैसे करेगा? हमने क्रिएट किया है, तो वो फाइल को डिलीट किसको करना है? मुझे डिलीट करना है। और मैं कहता हूं इसके वजह से मुझे गुस्सा। रॉन्ग, इट इज यू हु इज क्रिएटिंग ऑल दोस थिंग्स। और कितना दिन तक पकड़ के रखते हैं? मैं अभी आगे आपको स्लाइड दिखाने वाला हूं। एक स्टडी देखा गया कि एडल्ट्स दे लाफ 17.5 टाइम्स पर डे एज पर वन स्टडी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्कोर क्या है। आप में से किसका स्कोर 17 के ऊपर है? दिन भर में 17 के ऊपर हंसते हैं? है? अच्छा, घर पे पूछना पड़ेगा, घर वालों को ओरिजिनल स्कोर पता रहता है। हमारा एक भाई बहुत खुश रहता था। मैं हैप्पीनेस के ऊपर लेक्चर लेता हूं, मैं इतना खुश नहीं रहता हूं। तो मुझे बहुत ऑड लगा। मैं उसके घर पे गया तो वो घर पे ऐसे बैठा था। तो मुझे थोड़ा ऑड लगा। तो मैंने बीवी को उनके पूछा क्या हो गया सर, ऐसे क्यों बैठे हैं? तो खाना बनाए थे, ऐसे क्या हो गया, ठीक है? मैंने कहा नहीं, वो दुकान पे बहुत हंसते रहते हैं। बोला डॉक्टर साहब वो दुकान वाला चेहरा ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल चेहरा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हमारा ओरिजिनल चेहरा है मासी। कोई पूछता है हाँ ठीक है, ये तो दुनिया का चेहरा हो गया ना, आपका ओरिजिनल चेहरा पूछ रहा हूं। मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स फाइंड इट टफ, है ना? लेकिन मैंने क्या देखा है, और एक ऑब्जर्वेशन है, बच्चे कितने बार हंसते होंगे दिन भर में? मुझे आश्चर्य क्या लगता है, मैं ये फोटो ना बहुत सारे सेशंस में दिखाता हूं। मैंने क्या देखा, ये फोटो देख के भी लोग नहीं हंसते। ऐसे है, इधर मत देखो आजू बाजू में। आप लोग बहुत अच्छी तरह से ओपन हो रहे हैं। मैंने दोनों में क्या फर्क देखा, बड़े में और बच्चों में? बच्चे भी झगड़ा करते, बड़े भी झगड़ा करते, ठीक है? बच्चे कितना देर में भूलते हैं झगड़ा? भूल जाते हैं। और बड़े कितना दिन याद रखते हैं? मरते रहता है। मेरे पास क्लासिकल केस है, वो जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, मैंने कहा किसकी भी गलती है, तुम्हारी है, इसकी? बच्चों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बात नहीं कर रहे, दोनों बात नहीं कर रहे। 3 साल हो गया एक घर में। मैंने कहा बात नहीं कर रहे तो घर का काम कैसे चल रहा है? बोला अभी क्या करे, बात में कागज के ऊपर लिख के दे दे एक दूसरे, इंटरनल करस्पॉन्डेंस। मैंने कहा अच्छा है, काम तो हो रहा है। बोला नहीं, मुझे फ्लाइट पकड़ना होता है, अभी ये बात नहीं करती, मैं कागज के ऊपर लिख के देता हूँ, मुझे 5 बजे उठाओ, क्योंकि मैं अलार्म से उठता नहीं हूँ। तो मैं 8 बजे तक सोया रहता। मैंने कहा क्यों? मेरे तकिए पर दूसरा कागज होता है, 5 बज गए उठो। दिस इज कम्युनिकेशन। मैंने दोनों को समझाया, दोनों पढ़े लिखे, एजुकेटेड। मैंने कहा देखो किसकी भी गलती है, बहुत हो गया, बच्चे छोटे हैं, 3 बच्चे, तीनों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, प्लीज आप माफ कर दो। तो दोनों ने क्या जवाब दिया पता है? ये जवाब मैंने आज तक नहीं देखा। ओनली वन केस आई हैड, दे सेड डॉक्टर साहब इस जन्म में तो छोड़ो। मैंने कहा माफ कर दो। बोला इस जन्म में तो छोड़ो, अगले कई जन्म माफ नहीं कर रहे हैं। हाँ, और वो हमारे महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल होता है, वो क्या बोलते हैं, वो धागा बांधते हैं, वट सावित्री। आई डोंट नो हाउ हैव यू सीन, आपके इधर है वो। और उसमें वो क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर यही पति मिले, ऐसा वो फेस्टिवल है। उस लेडी ने कहा अभी मैं उल्टा धागा बांधते नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, वही ईगो क्लैशेस, दोनों का झगड़ा हो गया। कितना कॉन्फ्लिक्ट, अभी मैं क्या क्या बताऊं, पर्दा कौन सा लगाने का। एक डाइवोर्स का कारण मैंने देखा,
साउथ का केस है, हैदराबाद का। अभी साउथ इंडियन लोग कैसे खाना खाएंगे? चम्मच से या हाथ से खाते हैं? हाथ से खाते हैं। द वाइफ इज नॉर्थ इंडियन, चम्मच से। अभी ये दोनों शादी में जा रहे हैं और वो थाली लेके ऐसे तो वाइफ इज वेरी, क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैं बचपन से ऐसे ही खा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, ये मैनर्स नहीं है, छोड़ दिया। एक केस आया था गुजरात का, दोनों आया, वो एक पति बोलता है मेरी बीवी को ना मैनर्स नहीं, मैनर्स। मैंने कहा क्या? नहीं मैनर्स नहीं है। मैंने कहा एग्जाम्पल दो, और उसने जो एग्जाम्पल दिया, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया। यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड मेरी बीवी में मैनर्स नहीं है। मैंने कहा एग्जाम्पल दो। कहते वो टूथपेस्ट को ना बीच में से दबाती है, पीछे से नहीं दबाती है। अभी मेरे को बहुत हंसने को आ रहा था, मैं ऊपर देखा बाबा की तरफ, तो बाबा ने जवाब दिया मेरे तरफ मत देख, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मशीन में वैसा बन गया। मुझे लगा एक हाथ केस होगा, ऐसे बहुत केस है। मैंने कहा सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोला क्या करूँ? बीच में से दबाती है। मैंने कहा 25 रुपए में प्रॉब्लम सॉल्व, तुम दोनों अपना टूथपेस्ट अलग रखो। और वाइफ को बोला तुमको जहां दबाना है तुम दबाओ, तुमको जहां दबाना है। झगड़ा करने के लिए कारण नहीं चाहिए सर। ईगो होता है, बॉटम लाइन इज ईगो। कौन झुकना चाहता है? झुकना नहीं चाहते हैं, मैं यही कह रहा हूँ। यस, मेरे पास तो सांस भी कभी बहुत ही कम, मेरे पास बहुत केसेस है, बच्चे सांस भी कभी बहुत ही। यू नो दैट सीरियल? अभी हाउस वाइफ दिन भर काम करते 10 बजे चिपक जाते थे टीवी से। अभी उसमें कोई, मैं टीवी नहीं देखता, उसमें कोई मिहिर था उसका हस्बैंड का नाम, और वो तुलसी जो अभी मिनिस्टर है, तो उसका कुछ तो आउट ऑफ मैरिज अफेयर था, ठीक है ना। अभी 10:30 बजे सीरियल खत्म होती है और इसकी पति की एंट्री होती है घर पे, तो वो देखती है मिहिर भी बाहर से लेट आता है, मेरा पति भी लेट आता है। उसका चालू हो गया। एंड शी केप्ट इट इन माइंड। वो लोग बोलते नहीं है, लेकिन सस्पिशियस नेचर होता है ना कई लोगों में। एक दिन क्या देखा, छुट्टी के दिन में वो किसी लड़की से बात कर रहा है पति, उसका चालू हो गया वो मिहिर की तरह ही है। इसका एंगर इतना बढ़ गया, उसने एक पत्थर लेके वो लड़की का सिर फोड़ दिया। वो केस मेरे पास आई, मेरे क्लिनिक में, मैं स्टिच ले रहा था तब, तो पता चला कि ये क्या मामला है। शी स्टिल इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। उसका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो साइकोटिक स्टेज में चले गए। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सास भी कभी बहुत, मे बी सीड वाज देयर एंड इट गॉट स्प्राउटेड बाय द सिचुएशन। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब केसेस आते हैं, मेरा एक ही पर्पस है, जो भी पकड़ के रखा है आपने उसको छोड़ दो। इसलिए भारत में देवी देवता है, आपने कभी किसी देवी देवता की ऐसी मूर्ति देखी है, ऐसा फोटो? उनका हाथ कैसे होता है? दिस इज हाउ लक्ष्मी इज लाइक एनर्जी मस्ट फ्लो एंड मेडिटेशन टीचेस यू टू लेट इट गो। ये आप बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सुखी रहना है ना, छोड़ना सीखो, आप बहुत सुखी रहेंगे। एनीवे, जाते समय हम कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं ना, छोड़ना तो पड़ेगा ना। तो जो बातें हमको परेशान कर रहे हैं उसको छोड़ना सीखो ना। इट इज वेरी टफ। सो आई एम कमिंग टू द फंडामेंटल पॉइंट। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं हम? उसका कारण है हमारी बिलीफ सिस्टम। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस बम्बल बी। बम्बल बी, you know, bumblebee aerodynamically she cannot fly because of her weight. She is very heavy, है ना? उसके पंख देखो बहुत छोटे हैं और उसका साइज बहुत बड़ा होता है, but still bumblebee flies. क्यों? कारण क्या होगा? Can you guess? Other bees flying. Sorry? Stings. But why they fly? Aerodynamically they are overweight. In the light power. Willingness. Okay. Confidence. Because bumblebee doesn't know that she cannot fly. She doesn't know that she cannot fly. This is very powerful statement. I know many of my limitations. मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। अरे पर मैं क्या कर सकता हूँ?
हम नहीं करने वाली हमारी लिस्ट बहुत है। जैसे हमने कहा 4 बजे है, इम्पॉसिबल, पहले से ही आ रहा है। क्योंकि मेरा भी ये हालत था, मैं जब यहाँ 95 में आया 3:30 बजे उठा देते थे, कभी जिंदगी में नहीं उठा था, उठ जाता था और जाके सो जाता था। शिलू बहन ने मेरा कोर्स करा, मैंने कुछ नहीं सुना, पूरा सोता रहता था, क्योंकि 8 बजे के पहले कभी उठा नहीं था। नाउ इट इज नेचुरल। There is one more example of how belief works. Elephant, you know, this elephant can walk away not only with this stick but with the whole tree. पर ये मूव नहीं होता है, you know this trick? क्योंकि जब वो छोटा रहता है उसको चेन से बांधा जाता है, वो बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो उसके दिमाग में क्या चला जाता है, मैं ये नहीं तोड़ सकता हूं। फिर जैसे वो बड़ा होता है सिंपल रोप से उसे बांधा जाता है, एंड दैट एलिफेंट डजंट मूव, क्योंकि दैट एलिफेंट हैज बीन प्रोग्राम। आर यू देयर? दिस इज आवर प्रोग्रामिंग, हम सबका प्रोग्रामिंग हो चुका है। नाउ यू हैव टू सी इन योर लाइफ कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं, उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। क्योंकि जब भी आपके अंदर से आवाज आता है ये मेरे से नहीं होगा, मेडिटेशन मेरे से नहीं होगा, सेंटर पे जाना मेरे से नहीं होगा, इट्स अ प्रोग्राम विच इज वर्किंग। आर यू देयर? ये ऑटो पायलट मोड पे होता है और इसी को आपको बदलना है। इसलिए मैंने कहा माय जॉब इज टू डू रीप्रोग्रामिंग। अभी इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। हैव यू हर्ड अबाउट हेनरी फोर्ड मोटर्स? उसके आप हिस्ट्री पढ़ो, वेरी फेमस पर्सन, बहुत सारे चैलेंजेस आए। ही वांटेड V8 इंजन, V8 इज अ न्यू इंजन नोन एज मेड्स। उसने अपने R&D टीम को बोला मुझे V8 इंजन चाहिए। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, आज तक किसी नहीं, मुझे चाहिए। दे ट्राइड फॉर 1 month, दे कुड नॉट डू इट। सर नहीं हो सकता, आई डोंट नो, आई नीड इट। आप कुछ भी करो। एंड फोर्ड मोटर्स बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू कम अप विथ V8 इंजन। सो ये हमारे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट इन आवर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारा एक प्रोग्राम है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्फ मैनेजमेंट, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, उनके कंसल्टेंट्स ने बनाया। इफ यू थिंक व्हाट यू ऑलवेज थॉट, यू विल डू व्हाट यू ऑलवेज डन, एंड इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डन, यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर आप कहते हैं कि हमेशा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, there is one cognitive distortion. Maybe sir will understand what is cognitive distortion. It's a technical word. कुछ लोग मुझे बोलते सर मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। We call this always mentality. This is a cognitive distortion. अगर आप भी कहते कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं, so if you get what you always got, it means you are thinking what you always thought. Are you there? तो आपको बदलना कहां पे है? ऊपर, थिंकिंग लेवल पे बदलना है। एंड दिस इज वेयर योर बिलीफ वर्क्स। हम सबके बिलीफ है, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग देयर आर बिलीफ्स। वेदर गॉड इज देयर और नॉट, इट्स अ बिलीफ, है ना? वेदर द साइकिल इज अ 5000 ईयर और नॉट, इट्स अ बिलीफ। You have to be comfortable and your belief has to help you and others around you. If you think you can or you cannot, you are right, because your belief will make it so. Yes or no? तो 4 बजे उठना पॉसिबल है या नहीं है? 3:30 बजे, ठीक है। रोज 1 घंटा खुद के लिए सेल्फ केयर देना पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, इट्स अ बिलीफ, है ना? पॉजिटिव रहना इन ऑल सिचुएशंस, कोशिश करेंगे। सी इट इज वेरी टफ टू चेंज द बिलीफ्स, क्योंकि इसमें इसको ठोकना ही चाहिए, कुछ हुआ तो मारना ही चाहिए, दैट्स अ बिलीफ। सो यू हैव टू चैलेंज योर बिलीफ्स, because we are comfortable with most of our belief. Now the classical life story, कई बार हम थेरी बोलते हैं ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। Have you heard about अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है ना? हुआ क्या था, ट्रेन में से जा रहे थे, गुंडों के साथ झगड़ा हो गया, तो गुंडों ने क्या किया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, पैर के ऊपर से ट्रेन चली गई, रात भर वो पड़ी रही रेलवे ट्रैक के ऊपर, 40 ट्रेन ऐसे गए।
और उसने क्या देखा, पैर कट गया तो चूहे थे ना, वो चूहे उसके पैर को खा रहे थे, बट शी कुड नॉट मूव बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर। और इसको इस अनकॉन्शियस स्टेट में हॉस्पिटल में लेके आए सुबह। बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं घड़ी के हिसाब से कट शॉर्ट कर रहा हूं, पर जब इसको होश आया तो इसने देखा कि न्यूज़पेपर में उसके पैर कट गए, और न्यूज़पेपर में क्या न्यूज था कि इसके पास रेलवे का टिकट नहीं था, इसलिए टीसी को देख के इसने जंप मार दिया। शी वॉज अगेन डिस्टर्ब, बट शी क्रिएटेड अ थॉट कि मैं ऐसा करूंगी जो आज तक जिसके पैर है उसने भी नहीं किया। एंड शी क्रिएटेड अ थॉट कि मैं कहां चढ़ूंगी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब उस देख सोचो पैर नहीं है, गई वहां पे। हैव यू हर्ड अबाउट बचेंद्री पाल, अ लेडी हु कॉन्कर्ड? उसके पास गए, फर्स्ट वुमन, उसको बोला मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। उसने देखा इसका पैर ही नहीं है, बोला बट यू डोंट, मैं चढ़ूंगी। तो बचेंद्री पाल मोटिवेटेड है कि तू ऑलरेडी एवरेस्ट चढ़ चुके, अभी सिर्फ डेट डिक्लेयर होना बाकी है। स्पॉन्सर मिला, चढ़ना चालू किया। एक स्टेज पर आई, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। ये स्टोरी आप YouTube पे सुनो, वेरी मोटिवेशनल, उसके आवाज में ही है। फिर वो शेरपा होते, यू नो शेरपास, नेपालीज हु कैरी द लगेज, उसने कहा मैडम आपने बहुत अच्छा किया, वापिस चलते हैं। बोला क्यों, ऑक्सीजन खत्म हो गई, यू कांट सर्वाइव। बोला नहीं मैं जाऊंगी। शी वॉज वेरी एडमेंट, मैं जाऊंगी। बोला मैडम प्लीज अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छा किया, आपके पैर नहीं है फिर भी आप चढ़े, आप मर जाओगे। नहीं मैं जाऊंगी। और वो गई, उसने, हाँ कैसे गई होगी वो, कैन एनीवन गेस क्या हुआ रहेगा? वो अंग्रेजी में कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना? क्या हुआ रहेगा? उसको डेड बॉडी मिली रास्ते में, जो मर चुके थे उनका सिलेंडर निकाला उसने, and she used that, and she became the first Indian amputee to climb the Mount Everest, given a national award by the Mukherjee, President Mukherjee, Arunima Sinha. Are you there? Now take a different scenario. दूसरी कोई लेडी इसकी जगह पे होती है, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, मैं तो ठीक ही थी, मुझे ट्रेन में से फेंक दिया, इन्होंने पेपर में क्या लिखा, रो सकती थी ना? Are you there? But she choose to think differently. अभी उसका थॉट क्या है? शी विल क्लाइम ऑल द पिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उसका नेक्स्ट थॉट है ना? आई थिंक शी डिजर्व अप्लॉज फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तालियां तो मिलती है कि नहीं? मैं अपने आप को उसकी जगह पे रखता हूं, मैं ये नहीं कर पाता था। टू बी वेरी फ्रैंक, इट रिक्वायर्स अ ग्रेट करेज। शी वॉज अ स्पोर्ट्समैन, शी कुड डू दैट। आप ये अनुभव सुनो, दिस इज नोन एज बाउंसिंग बैक, रेजिलियंस, जो कल आपने वर्ड सुना ना। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिचुएशन डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे लोग क्या बोलते हैं, सर आप मेरी जगह पे आओ, उड़ीसा में आओ, इधर खड़ा रह के बोलना बहुत इजी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ, मेरे पोजीशन पे आओ, तब पता चलेगा प्रॉब्लम क्या होते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, लुक एट द पीपल, दे हैव बिग प्रॉब्लम्स। दिस इज वन मोर बुक, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस बुक। हैव यू हर्ड अबाउट दिस जेंटलमैन, नॉर्मन कजिंस? He had one incurable disease. हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई है? Have you heard about ankylosing spondylitis? Bamboo spine. Bamboo spine माना क्या होता है? Spine fuse हो जाता है. They cannot bend, they cannot do like that. They have to move like this. It's a fusion of the vertebrae. So it's a slowly progressive. There is no cure till date. Huh? No cure. This gentleman had, he was a journalist, he had this disease, terminal illness. डॉक्टर ने बोला लास्ट स्टेज, तुम ऐसे ही जाने वाले। ही वॉज इन हॉस्पिटल टेकिंग पेन किलर्स। इसने कहा सॉरी डॉक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू डाई इन हॉस्पिटल। ही टुक डिस्चार्ज, होटल में गया, अपना रूम बुक किया, और उसने डिसाइड किया मैं रोते रोते नहीं मरूंगा, मैं हंसते हंसते मरूंगा। एंड ही यूज्ड टू वॉच द मूवीज ऑफ चार्ली चैपली एंड लॉरेल हार्डी, एंड बहुत हंसता था, नर्सेस को हंसाता था, डॉक्टर्स को। तो इसने क्या देखा, जब ये खुश रहता है, इसको पेन किलर का इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो हिज डोज ऑफ पेन किलर वेंट डाउन, और इसने खुश रहने का डोज बढ़ा दिया। एंड स्लोली ही गॉट डिस्चार्ज। ही इज द ओनली मैन हु इज रिपोर्टेड टू क्योर बाय, हु इज क्योर्ड ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बाहर आके उसने बुक लिखा, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, हु वाज अ न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट।
for many weeks. Again doctors called him to give lectures in medical college. आप बताओ भैया आपने कैसे ठीक किया? And then he said कि laughter is the best medicine. खुशी जैसी खुराक नहीं है, आपके अंदर वो healing hormones को पैदा करती है. So he challenged the belief of the doctor that ankylosing spondylitis is incurable. कल आपने सूरज भाई ने कई सारे अनुभव सुनाए ना, तो कई बार कई लोग तो ये सब फालतू है, ये सब प्लासिबो है. We doctors are very critical. हमको पहले negative thought आता है. I know placebo is there. 33% is placebo. But उस patient के लिए it is very important ना, his life is changed. हम सब डॉक्टर प्लासिबो को यूज करते हैं. But what I'm saying is, it is up to you to challenge the beliefs. Again, one more case, a 4-year-old girl, 20th of 22 children. माना 22 बच्चों में से इसका नंबर 20वां था. क्या लोग थे उस समय. Scarlet fever at very early age, paralyzed her left leg. Thereafter, at 9 years of age, she removed her leg braces and started walking without them. At 13, this girl decided to become a runner and kept falling miserably in all races that she entered in. She kept trying and in spite of all detractors finally started winning every race she entered, and she got 3 Olympic gold medal. जिसको बचपन में पैरालिसिस था, she got 3 Olympic gold medal. कौन है ये? She is not Indian. तो मैं ये कह रहा हूं ये कैसे हो सकता है? She is Wilma Rudolph, who went on to win 3 Olympic gold medals. अब ये उसने कैसे किया? She challenged here. आप समझ रहे हैं? यहां पे आपको जीतना है, लड़ाई यहां पे जीती जाती है पहले. Yes or no? है ना. आपके अंदर जो भी फाइट होगी ना, यहां पे होगी पहले. कर सकता हूं, नहीं कर सकता, कैन डू, कैनॉट डू. यहां पे आपको जीतना है. भगवत गीता इफ यू रेड, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता, जो अभी दीदी ने बताया ना, दैट वाज अ श्लोक ऑफ द 5th वर्स ऑफ 6th चैप्टर, कि आत्मा अपना ही मित्र और शत्रु है. दैट इज 5th वर्स ऑफ द 6th चैप्टर. उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादेत. आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना. बंधु माना मित्र, रिपु माना शत्रु. तो अपना उद्धार खुद करो. ऑल दिस पीपल, मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिए, मेरे पास बहुत है. आत्मा करते इसका. इसने क्या किया? अपने बिलीफ को चैलेंज किया कि मैं नहीं चल सकती हूं. उसने भागना चालू किया एंड शी स्टार्टेड विनिंग. नाउ लेट्स कम. भाई बहुत लोग मुझे कहते हैं सर आप बाहर के बहुत एग्जांपल देते हैं, आपने कुछ दीवे लगा है, आपने कुछ किया है तो बताओ. दिस इज माय मार्कशीट ऑफ 1988, 11th स्टैंडर्ड. दिस इज माय नेम, दिस इज माय कॉलेज. माय पेरेंट्स वांटेड टू मेक मी डॉक्टर, सो दे पुट मी इन इंग्लिश स्कूल. और मेरा 10वीं तक पढ़ाई मराठी में हुआ है. हमारे इधर पासिंग मार्क्स 35 आउट ऑफ 100. उड़ीसा में कितने हैं? नहीं ना, 100 में से 33 है. 30 कर दिया. काश मैं बिहार में होता, सुना आपके यहाँ होता तो पास हो जाता. 30. हमारे इधर इंडिविजुअल 35 है. तो मुझे ये फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश है ना, आई स्टडीड इन मराठी, तो मुझे फर्स्ट सब्जेक्ट में 34 मार्क्स मिले. सो एज पर इट आई एम फेल. पर हमारे टीचर को दया आई, बच्चा अच्छा दिखता है तो मेरे को ग्रेस मार्क दिया. आई एम प्रमोटेड इन 11th स्टैंडर्ड. अब ये मार्कशीट मैं सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना स्कूल फेल हो गए, मैंने सुसाइड सीधा. आई वर्क विद दिस सुसाइड किड्स. मैं उनको मेरी मार्कशीट दिखाता हूं. मैं उनको बताता हूं कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश. फॉर 6 months व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, एवरीथिंग वाज सुप्राकॉर्टिकल. ऐसे हाथ रखा तो भी अंदर नहीं जा रहा था. वो 34 मार्क्स मिलाने के लिए कितना मेहनत किया मुझे पता है, तब 34 मिले. अभी हुआ क्या, मेरे पास 1 ही साल है 12th स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर MBBS में एडमिशन मिलता है. अभी उसके लिए सिंस आई एम फ्रॉम ओपन कैटेगरी, तो मुझे 90% मार्क्स चाहिए. माई मार्क्स आर लेस देन 50%. कहां से लाओ 90%? इट इज वेरी टफ एंड आवर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड. I am born and brought up from a slum area of Mumbai. I am born and brought up from a slum area. मैं 100 square feet में बड़ा हुआ हूँ. We had no toilets at our home. हमको बाहर जाना पड़ता था डब्बा लेके.
That was the state in which I am brought up. My parents are not educated. अभी कहाँ से लाओ, और झोपड़पट्टी है, वहाँ पे तो सब खाने पीने वाले. अभी मैं क्या करूँ, एक तो इंग्लिश नहीं आते, नो कोचिंग क्लासेस. पर मैंने कहा आई टॉक माई सेल्फ, नहीं मैं कर सकता हूँ, क्या करूँ. आई गॉट अ डिक्शनरी इंग्लिश टू मराठी. So I started studying every word. Then I realized just by studying 2 hours you cannot overcome. You have to increase the time. So 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करने लगा. और पढ़ाई करते समय मेरे झोपड़पट्टी के दोस्त आते थे. क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या. ये मेरे दोस्त. मैंने हाथ जोड़ा, बॉस एक ही साल है, अगर ये गया तो जिंदगी. आई कुड सी कि अगर ये मेरा 12th स्टैंडर्ड गया, my life is in Choppadpatti. I focused. I practice meditation. I remember God. With God's grace, मुझे कितने marks मिले होंगे in 12th standard? I got 91% mark in 12th standard. Straight away into MBBS. मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ? I challenge my belief system, है ना? ये एक बार नहीं है, मैंने बहुत बार दिए लगाया है. ये MBBS की मार्कशीट है मेरी. MBBS 94, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. घर पे माँ बाप पेड़ा बर्फी लेके तैयार है, मिठाई लेके, हमारा बेटा आएगा और हम सबको बताएंगे डॉक्टर बना है. और ये मेरा रिजल्ट है फाइनल MBBS का. आई एम फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, मेडिसिन एंड सर्जरी. दैट वॉज शॉकिंग टू मी, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं पास था, अच्छे मार्क्स से पास था. एंड यू आर मेडिकल प्रोफेशनल, यू नो एक्सटर्नल जब आता है ना, 2 कॉलेज में झगड़ा होता है. एक्सटर्नल का फर्स्ट एड, आज मैं 50 लोगों को फेल करूंगा. उस एक्सटर्नल के साथ आई वॉज हाईएस्ट. तो मुझे थ्योरी में फेल किया, मेडिसिन एंड सर्जरी. और एक आयरनी है, जिसने मेरे में से कॉपी किया मेरे पीछे बैठा था, पास नहीं, डिस्टिंक्शन. He is now one of the biggest gastroenterologist of India. उसका कंसल्टिंग चार्जेस 2000 है आज मुंबई में. मैं आज भी उसके पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ ज्यादा आवाज मत कर, सबको बता दूंगा क्या किया था. अरे पर मुझे क्यों फेल किया? So I applied for revaluation. Please check my papers again. तो यूनिवर्सिटी बोलता है हर लड़के को लगता है 5,000, तू तो 2 सब्जेक्ट में और इतना फर्क है, जाओ फिर से पढ़ाई करो. आई वॉज सैड, बट मैंने सुसाइड का नहीं सोचा. आई सेड ओके लेट्स फाइट बैक. फिर से पढ़ाई चालू किया, पर जो मेरे साथ हुआ है किसी के साथ होना नहीं चाहिए. 5 महीने बाद रीचेकिंग का रिजल्ट आया और मुझे बताया गया सर सॉरी आपका पेपर चेक नहीं हुआ, यू आर पास विद वेरी गुड मार्क्स. मुझे वापस पास कर दिया गया. But I lost 6 months of my life because of a mistake of an examiner. Are you ready what I am saying? लोगों ने बोला आप किस करो यूनिवर्सिटी के ऊपर. I said I am not interested. क्योंकि मेरा बिलीफ यहाँ पे क्लियर था, अगर आप लायक है, इफ यू आर डिजर्विंग, वो क्या आमिर खान का डायलॉग है 3 Idiots का, कामयाबी कहाँ पे आती है? काबिल बनो तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आते हैं. जब आई डिड नॉट वांटेड टू यूज दैट वर्ड. काबिल बनो, आप डिजर्विंग हो ना, तो नेचर विल गिव. नो वॉच, दिस इज अ प्रोजेक्ट. हु इज दिस लेडी? Pratibha Tai Patil. She launched our project Addiction Free India in 2003. I am the national coordinator of this project, and so far I have trained 21,000 people in India who are giving their services in addiction all over India. This is number 1. This is the award which I received from the state level, Mahatma Gandhi Award. And these are the awards we have received in Maharashtra. 7 consecutive award मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. This is also a record in Maharashtra. ब्रह्मा कुमारीज. अभी जाओ now with the help of God, this is आप नीचे जाने वाले हो. ब्रह्मा कुमारी का एक हॉल है नीचे 25,000 का. आप में से किसने देखा है? नहीं देखा, आप जाते समय देखो. This is how 25,000 people sit. तो उसमें मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के निमित्त बना ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस. She is governor of Goa, Mridula Sinha, and these are our senior BKs. And this project has reached 180 countries of the world, of which I am a project director. तो ये भी भगवान की मदद है. This is India Brahma Kumaris you are seeing. This is WHO team which visited our stalls. I was lucky to participate in this FCTC. Have you heard about Framework Convention Tobacco Control?
So ये है मिनिस्ट्री की टॉप टीम which visited our stall, and recently I was in G20. G20 में भी I have given presentation on this addiction, how Brahma Kumari's meditation helps in quitting addiction. तो ये हमारी टीम है, शुभदा लीला, ये कमला बहन हमारे साथ थी, वो कॉल कर रहे थे, she has helped us. हमारी पूरी टीम थी G20 में, इन्होंने डिवाइन गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और ये पूरा G20 का ग्रुप था. मुझे अफ्रीका के बाजू में क्यों रखा है मुझे समझ में नहीं आया. हर एक का अपना परसेप्शन. देखो मैंने एक स्टेटमेंट किया, आप सबके चेहरे पे हंसी आ गई बाद में, क्योंकि आप सब थ्योरी भूलने वाले हो, आप सिर्फ यही ध्यान में रखने वाले. आई रियलाइज दिस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर. मैं पूछता हूँ क्या सुना था ना, कुछ सुना था वो याद नहीं, लेकिन हंसे बहुत थे हम, इतना याद है. आपका टॉडी आज सुबह देख रहा था. अच्छा. जो बुकलेट दिया वो हाँ हाँ हाँ. उसमें लिखा है आपका नाम. अच्छा. सेकंड और थर्ड में है. अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. ठीक है, मैं जब पहली बार इस ज्ञान में आया, मुझे बताया गया सोल इज एवरीथिंग. सोल, मैंने कहा सोल क्या होता है. आई वॉज नॉन बिलीवर, मैं भगवान को नहीं मानता था, मैंने कभी उपवास नहीं किया. हमारे घर वाले मुझे डांटते थे, कहाँ से हमारे घर में आ गया, क्योंकि वो गणेश को मानते हैं. तो महाराष्ट्र में क्या है, गणपति की बहुत पूजा होती है, और हर महीने एक संकष्टी चतुर्थी होती है, जिस समय वो 21 मोदक बनाते हैं, और चंद्र का दर्शन नहीं तब तक खाना नहीं. मेरे को इधर भूख लग रहा है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब, मैं ये सब चीजें नहीं मानता था. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्लम एरिया जहां राइट्स होते थे हिंदू मुस्लिम, तो मैं भगवान को नहीं मानता था. यहां जब आया तो पता चला सोल, सोल में सब कुछ. मैंने व्हाट इज दिस सोल, तो सोल का शब्द मेरे आंखों के सामने डांस करने लगा. मैंने गॉट टू फुल फॉर्म ऑफ सोल. First, soul is source of unique light. It's a light, metaphysical light. And second soul, I got the secret of ultimate living. There is a secret inside the soul. And I started churning over it. और मैंने बहुत कुछ सोचा, and then मुझे कुछ theories आई बहुत सारे. उसको मैंने पहले अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने ये सीरीज चालू किया विद द हेल्प ऑफ गॉड, एंड दिस इज टेलीकास्टेड इन 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. 350 एपिसोड्स इसके टेलीकास्ट हो चुके हैं. पीपल आर वॉचिंग दिस एपिसोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. भगवत गीता मेरे को कुछ पता नहीं था, संस्कृत आई नेवर लर्न, बट वन ऑफ आवर सीनियर ब्रदर जगदीश भाई, उन्होंने मुझे कहा गीता का भगवान बाकी है. मैंने कहा इतना टफ है क्या गीता का भगवान. बोला नहीं, ये लोग थोड़े कट्टर होते हैं. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग. नाउ मैं थ्री चैनल के ऊपर मेरे 40 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए भगवत गीता के ऊपर. एंड पीपल रिमेंबर मी. नाउ आई रिमेंबर अराउंड 300 वर्सेस ऑफ भगवत गीता रफली, ऑन विच आई स्पीक. तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, यू हैव टू चैलेंज योर लिमिट्स हियर. आर यू देयर? There are limiting beliefs all of us are carrying, कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. And then Vihasa is the program which is going on, and this is the program which I want you to do. It's a personal and team development program, values in healthcare. इसको credit hours है महाराष्ट्र में. Doctor, if he has to practice, he has to get 30 points. I do not know about Odisha. Is it mandatory there? And this program has credit hours because it addresses the burnout. This program has got these 8 modules: values, peace, positivity, compassion, cooperation, valuing the self, spirituality in health, and building resilience. अभी मैं कल जा रहा हूँ विशाखापट्टनम. So in विशाखापट्टनम, I am taking this building resilience module to the doctors, 60 doctors. Resilience is very important, ability to bounce back. Every module is important, like values, gain strength through motivation, benefit from remaining calm, harnessing the power of thoughts. ये सब है. कल जो आपको कल्पना बहन ने एक एक्सरसाइज कराया, you know sister कल्पना, high point in working life, this is from values module, one of the exercise. तो हम लोग भाषण नहीं करते, we sit in a circle and then we facilitate. तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है. ये देखो हमारे डॉक्टर अशोक मेहता हु गॉट दिस प्रोग्राम इन हांगकांग, शी इज भावना सिस्टर फ्रॉम यूके, दे ट्रांसलेटेड दिस बुक इन चाइनीज, और बहुत अच्छा वहां चल रहा है. इंडिया में अब्दुल कलाम ने लॉन्च किया ये प्रोग्राम 2006, और आई एम लकी कि शिव बाबा की मदद से मैं 2007 से ये प्रोग्राम इंडिया में कंडक्ट करा. अभी तक हमने 500 फैसिलिटेटर्स को ट्रेन किया है.
कल आप जब पिकनिक में जाने वाले हैं ना, तो वन ऑफ आवर टीचर सुनैना दीदी फ्रॉम ORC दिल्ली, शी विल बी कंडक्टिंग सर्टेन एक्सरसाइज फॉर यू. आप बहुत एंजॉय करोगे. दीज आर द कंट्रीज वेयर दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, इंक्लूडिंग UK एंड USA. सबसे ज्यादा ये इंडिया में चल रहा है. एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू चेंज योर EQ. और ये कैसे होता है, अभी लास्ट फ्यू मिनट्स है, क्योंकि आपको आज ग्लोबल हॉस्पिटल जाना है. अगर आपका थॉट ये रहेगा कि आई कैनॉट पास माई टेस्ट, यू विल इमेजिन योर सेल्फ फेलिंग, यू रिमेंबर सिचुएशन फेल, यू विल गिव एग्जाम विद फेलियर एंड यू विल फेल. और फिर आप बोलोगे देखो मैंने बोला था ना मैं फेल होने वाला हूं. आपका शुरुआत भी नेगेटिव हुआ था, तो वैसे ही होगा. आई शो दिस स्लाइड टू स्टूडेंट्स. अगर आपको ये चेंज करना है, यू हैव टू बिगिन हियर. आई विल पास माई टेस्ट, इमेजिन, रिमेंबर अदर सिचुएशंस ऑफ सक्सेस, गिव एग्जाम विद कॉन्फिडेंस एंड देन यू पास. सर थोड़ा पीछे करने से. अच्छा ये मैं ये कह रहा हूं कि ये सब फोटो अच्छा है. आप लोग यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ब्रदर. I know many people who remember so many books and quotes, who give lectures, but practically it is not easy. I'm sorry, I'm not negative by saying this. You have to work on yourself. It takes lot of time to change your sanskars, which are in autopilot mode. समझ रहे हैं? Autopilot ये automatic काम करता है. उसके लिए time लगेगा. It takes time, but I'm not negative. अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये पॉसिबल है. और आप कौन से स्टेजेस से जाने वाले हैं? फर्स्ट, आई कांट, आई वोंट, आई विश आई कुड, आई डोंट नो आई हाउ टू, आई थिंक आई माइट, आई वांट टू, आई थिंक आई कैन, आई माइट, आई विल, आई कैन एंड आई डिड. ये आप कितना फास्ट करते हैं, आप कितना फास्ट इसमें जाते हैं, ये आपके ऊपर है. फायर इन द बेली, पैशन चाहिए आपके अंदर, पैशन है ना, फायर इन द बेली है. कई लोग होते हैं, डॉक्टर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे कैन डू इट. क्या तो मैं चाहता हूं कि आप ये करो. पीपल आर डूइंग प्रेयर. हम लोग यहाँ बताते प्रेयर, इन प्रेयर वी टॉक टू गॉड, इन मेडिटेशन वी लिसन टू गॉड. This is the communion of inner light with the supreme light. We are not human being with occasional spiritual experience, but we are spiritual being with occasional human experience. Shift your perspective. क्योंकि हम भी ये नहीं जानते थे, ये हमारे मेडिकल विंग के कैड में बताया जाता है. We call ourselves human being. Human has come from humus. Humus means soil. Being is a life for soul. Soil माना मिट्टी. Soul is an energy. ये शरीर के ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया हुआ है, बट व्हाट अबाउट सोल? बोथ आर इंपॉर्टेंट. शरीर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. पर हम ये कह रहे हैं कि द मोमेंट यू एक्टिवेट योर दिस सोल पावर, सोल कॉन्शियस, इसका इफेक्ट आपके ऊपर कम आएगा. इट्स अ ट्रांजिशन. वी आर एनर्जी इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग कह रहे थे ना माफ नहीं कर पा रहे, ये मेरा फॉर्मूला मैंने देखा है कि हमारा ओम पावर जितना बढ़ते जाता है ना, हम लोग माफ ये छोड़ कर पाते. व्हाट इज ओम पावर? ओम हैज 3 वर्ड्स, AUM. A फॉर अवेयरनेस, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड M फॉर माइट. हम सबकी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट समय समय पर बदलते रहते हैं. जब हमारी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और माइट अच्छी होती है, इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट एंड फॉरगिव पीपल. समझ रहे हैं आप बात को? ओम पावर हमारी बदलते रहते हैं. मेरी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड शक्ति, अगर ये 3 चीजें मेरे पास है, ये मेडिटेशन से बढ़ती है. वी कनेक्ट विद द सुप्रीम एनर्जी. एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस टू लोअर कॉन्शियसनेस. अभी मैं आपको एक मेडिटेशन करा रहा हूं. बीइंग एन हिप्नोथेरेपिस्ट वी यूज सर्टेन टेक्निक कि ये जो सुप्रा कॉन्शियस है हमारे अंदर, सुप्रा कॉन्शियस, देखो साइंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में, बट देयर इज समथिंग नोन एज अनकॉन्शियस, देयर इज समथिंग नोन एज सुप्रा कॉन्शियस. जैसे आप आगे सेंटर पर जाएंगे ब्रह्मा कुमारी के, एंड इफ यू डू 7 days कोर्स यू विल बी टोल्ड अबाउट दिस अनादि संस्कार. अनादि संस्कार है विच इज अ वेरी पॉजिटिव. अगर इसको आपने एक्टिवेट किया तो आपके माइंड बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे. मैं चाहूंगा कि हम ये एक्टिवेट करें हमारी दादी जानकी. यू नो दिस लेडी,
She was chief of Brahma Kumaris. She has been investigated by scientists across the world. और उनको ये award दिया है one of the most stable mind in the world because she produced delta waves in all the states. Normally, if you are not sleeping now, you are in beta. As you start relaxing, you go alpha, theta, and delta is deep sleep. Dadi in all the stages, आंखें खुली, आंखें बंद, calculation, she produced delta waves. So पहले साइंटिस्ट को लगा हमारी मशीन खराब है, then they check with control, machine is okay, it is दादी's power. तो हम अभी उस स्टेज में जाने की कोशिश करेंगे. क्या आप इस स्टेज में आना चाहते हो? Do you want to experience? अभी क्या होने वाला है? ये एनर्जी आपके अंदर आएगी, ये ब्लॉकेजेस है, ये ओपन हो जाएंगे और जैसे ये ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं यू फील समथिंग नोन एज डबल लाइट स्टेज. यहाँ पे एक स्टेज बताई जाती है मेडिटेशन में, वी कॉल डबल लाइट. इट ओपन्स ऑल द ब्लॉकेजेस. दिस रेड पैचेस आर द ब्लॉकेजेस इन द माइंड एंड बॉडी. मैं आपको अभी विथ सर्टेन सजेशन आई एम टेकिंग यू टू दैट स्टेज. आर यू रेडी? दिस स्टेज आई वॉन्ट यू टू रीच वेयर आपका शरीर लाइट का होगा, आपका माइंड हल्का हो जाएगा. तैयार है? आई विल बी यूजिंग सर्टन टेक्निक्स. पहले मैं आपको रिलैक्स कराऊंगा. रिलैक्सेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर मेडिटेशन. और मैंने देखा अगर आप रिलैक्स अच्छा होता है, सजेशंस आर एक्सेप्टेड वेरी वेल एंड यू डिटैच फ्रॉम द बॉडी. नहीं तो सोल का एक्सपीरियंस सबको नहीं होता है. ठीक है? तैयार है? सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मोबाइल अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बेस्ट इज स्विच ऑफ मोड. पर अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं तो साइलेंट पे रखना, बॉडी से दूर रखना. दिस इज अगेन अ बिलीफ. 2 पैरों में अंतर रखो. वेरी गुड. आई विल बी यूजिंग 2 वर्ड्स. मैं 2 शब्द ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, रिलैक्स एंड लेट गो. रिलैक्स माना ये जो पकड़ के रखा है आपने माइंड के अंदर, रिलैक्स. लेट गो माना विचार आएंगे, खाने में क्या बना होगा, कभी जाना है, छोड़ दो ये विचार. लेट गो एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. आप में से लकी वो लोग होंगे जो वेटलेस हो जाएंगे. आपका वजन 70-80 किलो होगा, 60 होगा, आप फ्यू ग्राम्स के जैसा अनुभव करोगे. यू नीड नॉट लुक एट मी. आप कहीं पर भी अपना ध्यान एकाग्र करो, क्लोज योर आई, चॉइस इज योर्स, लेकिन सोना नहीं है. बिकम अवेयर. ठीक है? बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग. कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. बी कंफर्टेबल. बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग. फील द वाइब्रेशन इन दिस हॉल. Catch the breathing sound of the person sitting next to you. Become aware of the energies in this hall. आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ते जा रहा है. हमारे कानों में इतनी शक्ति है कि बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के ब्रीदिंग साउंड को हम कैच कर सकते हैं. Catch the breathing sound. Become aware. आपकी एकाग्रता बढ़ते जा रही है. धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र कीजिए. सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक अपने शरीर के अंदर जो भी टेंशन है उसे महसूस कीजिए. फील द टेंशन इन द मसल्स ऑफ योर फिजिकल बॉडी. वेरी गुड. And consciously with your willpower release the tension. Relax, relax, let go. आपका शरीर हल्का होता जा रहा है. दोनों पैर relax. Foot, calf muscles, thigh muscles relax. दोनों पैरों के अंदर की थकावट दूर हो रही है. अब बहुत अच्छा लग रहा है. फील द टेंशन इन द मसल्स ऑफ योर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक,
Feel the tension and release the tension. Relax. Your back muscles are also relaxing. Chest and abdomen. Feel the tension in the muscles of chest and abdomen. And consciously with your willpower, release the tension. Relax. दोनों हाथ, shoulder, arm, elbow, forearm. Relax. गर्दन के नीचे पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स. एक्सेलेंट. बहुत अच्छा लग रहा है. नेक मसल्स, फेशियल मसल्स, relax. Your forehead and eyebrows are also relaxing. Relax. चेहरे पे एक स्माइल लाएंगे. You are totally relaxed and peaceful. Pleasant smile on the face. Very good. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत हल्का लग रहा है. और हल्के होते जाएंगे. 1 से 10 में उल्टा गिनूंगा. जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे. 10, 9, 8. You are going in deeper and deeper stages of relaxation. 7, 6. आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है. 5. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत हल्का लग रहा है. 4. आपका पूरा शरीर और मन शांत हो चुका है. 3. You are going in deeper and deeper stages of relaxation. 2 और 1. आपका पूरा शरीर और मन शांत हो चुका है. You're totally weightless. Focus your attention in the center of the forehead. देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश हो. इस शरीर से बिल्कुल अलग हो. ये शरीर भारी है पर आप बिल्कुल हल्के हो. A brilliant shining star. जैसे वीडियो में दिखाया था, विजुअलाइज करेंगे आकाश से परमात्मा शिव बाबा आपको आशीर्वाद दे रहा है. A blue color light is coming from the sky, from the ocean of peace. ये लाइट मस्तक के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है और जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं. एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड. आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है. शांत एंड रिलैक्स. रिलैक्स. आज आपने महसूस किया सिचुएशन कैसे भी हो, हर सिचुएशन में आई हैव अ चॉइस. आई कैन थिंक पॉजिटिव. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम टोटली रिलैक्स एंड पीसफुल. स्लोली, विदाउट मूविंग योर बॉडी, प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज and relax. Please come back to the original stage. Om Shanti. Good morning. किसको किसको हल्का लगा? You feel good? There is no magic. आप सिर्फ 5 मिनट सजेशंस को फॉलो किया. Now how this helps? Scientifically it has shown. This is study in the Indian Heart Journal. कि these are the arteries which were blocked. It has opened 100%. See this artery, 100% cut off RC है. And we have 10,000 such cases who have opened these arteries through Raj Yoga. It's a lifestyle modification program. I work in addiction. These are 2 studies, tobacco and alcohol, and these are published study in Indian Journal of Private Psychiatry. 97% could quit with Raj Yoga meditation. 2 godly degrees you will get, IAS and IPS. आपने आगे लिखना.
I am a soul and I am a peaceful soul. These are 2 degrees आप लेके जाओ. ये ब्रह्मा कुमारी की डिग्री है. Last 2 slides. Talk to your past. Dear past, thank you for all the life lesson. Dear future, I am ready. And everything will be okay in the end. If it is not okay, it is not the end. Picture अभी बाकी है. Picture अभी बाकी है. Thank you very much. Om Shanti.